Good morning. Analytic functions. Before starting this, first we will revise what are the functions. Function f is a mapping from a set A into the set B. Suppose this is a function f. It is a mapping from the set A into the set B. Suppose we are having 3 elements in A and 5 elements in B. Now this first element, this associate with suppose this element of B, and second element associate with the other element of B. Now if this is a function f which associates every element of A a unique element of B. Now the set A, suppose this is also associated with some other element of B. So this set A is your domain and this set B is your codomain, and set A is also known as pre-image of F. And the set of the elements which are associated with the elements of A, this set, that is, this is the subset of B, and this set is known as, this is your image of F. The subset, this is known as the image of F. A के एलिमेंट्स आपके प्री इमेज होंगे और बी के अंदर जो सबसेट होगा वो उस जितने भी एलिमेंट्स एसोसिएट हुए हैं, बाकी ये नहीं हुआ है. सो दिस सबसेट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ एफ, एंड दिस इमेज ऑफ एफ इज ऑल्सो डिनोटेड एज, that is your subset, it is also denoted as f of A. अगर हमारे ये जो B है आपका सेट, अगर सारे के सारे एलिमेंट्स एसोसिएट हो गए, यहाँ पर आपके 3 एलिमेंट्स एसोसिएट हुए हैं, सॉरी दिस इज़ नॉट एसोसिएटेड, सो आई विल बी रिमूविंग दिस. ऑलराइट, अगर हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स एसोसिएट हो जाते हैं, पूरा का पूरा बी का सेट अगर एसोसिएट हो जाता है, तो हमारा जो सबसेट है, दैट इज़ योर एफ ऑफ ए, ये पूरा का पूरा एफ ऑफ बी के बराबर हो जाएगा. देन योर फंक्शन इज ऑन टू. सो योर फंक्शन एफ बिकम्स ऑन टू. नाउ अब हमारे पास दूसरा फंक्शन आता है, दैट इज़ 1 1 फंक्शन में क्या है, अगर आपके ए के एलिमेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं बी के एलिमेंट्स के साथ, बट डिफरेंट इनकी इमेजेस होंगी. सपोज़ यहाँ पर x1 एलिमेंट है, दिस इज़ x2, दिस इज़ x3. Different elements of A are associated with different elements of B. Suppose this is your y1, this is y2, this is y3. This is associated with y1, this is associated with y2, this is associated with y3. But आपका जो x1 है ज़रूरी नहीं है y1 के साथ ही associate होगा. This can also be associated with y2 also. Any one of these three, but different. So the different elements, if different elements of A are associated with the different elements of B, then the function is 1 1. So if different elements of
A are mapped onto different elements of B, then the function is said to be 1 1. ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, y4 एंड अदर एलिमेंट्स कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन दिस B. अगर आपका फंक्शन ऑन टू भी सेटिस्फाई हो रहा है और 1 1 भी है, दोनों है, देन योर फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव. दिस ऑन टू फंक्शन इज surjective, 1 1 function is in other terms injective, and if both the functions 1 1 and onto, then this is termed as bijective functions. So next, one one function is, if f is 1 1, then this is injective. If f is onto, then this is, sorry, if function is onto, then this is surjective. If function is 1 1 and onto, then this is bijective function. This can also be taken as your remark. अभी फ़िलहाल हम बस इसको जस्ट इनके टर्म्स रिवाइज कर रहे हैं. इसकी डिटेल्स हम सम अदर चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगी इसकी डिटेल्स. फ़िलहाल एनालिटिक फंक्शंस के लिए जस्ट मैंने आपको बताना था व्हाट आर द फंक्शंस और क्या क्या टाइप्स होती हैं उसकी. और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, फ़िलहाल हमें बस यही अभी यहाँ पर पढ़ना है. नेक्स्ट वी आर रिवाइजिंग लिमिट्स. अभी तक हमने रियल वैल्यूड फंक्शंस की लिमिट, रियल नंबर्स की बेस पे लिमिट्स पढ़ी हैं, बट हम यहाँ पर अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे. ओके, definition is, suppose f is a function from set A to R, that is the set of real numbers. This can be any set, and this set is the subset of complex numbers because we are revising the complex numbers. Now suppose let z naught be the limit point of A. We say that fz tends to a real number L as z tends to z naught. जैसे सपोज हमारा A सेट के अंदर कोई z पॉइंट है, अगर वो z naught की लिमिट z naught पे टेंड कर रहा है, तो हम f ऑफ s जो भी इसकी वैल्यू होगी इस पॉइंट पे, सपोज ये आपका सेट A है, इसमें हमारे पास एक z पॉइंट है, जैसे वो z naught पे टेंड करेगा तो f की वैल्यू इस पॉइंट पर जो भी होगी, f ऑफ z, इस पॉइंट पर जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी वो हमारी L पे अप्रोच कर रही है. सपोज नाउ वी से दैट इफ z नॉट बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ A, देन fz टेंड्स टू अ रियल नंबर L. दिस इज योर रियल नंबर. देन f of z tends to a real number L where z belongs to A, as z tends to z naught. If epsilon positive be given, if epsilon positive be given, there exists a real number delta positive that depends upon both epsilon and the limit point z naught. Depending upon z naught and epsilon, एक ऐसा हमने डेल्टा पॉजिटिव चूज़ कर लिया जो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है.
सच दैट एफ ऑफ जेड माइनस एल का जो मॉड होगा दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर जेड माइनस जेड नॉट मॉड लेस देन डेल्टा फॉर जेड बिलोंगिंग टू ए। हमने इस सेट पर ए सेट में हमने एक जेड नॉट लिमिट पॉइंट कंसिडर किया है। सपोज हमारा जेड नॉट लिमिट पॉइंट है ए का, देन दिस वैल्यू एफ ऑफ जेड टेंड्स टू एल। तो इन दोनों का जो मॉड होगा दैट इज़ लेस देन एप्सिलॉन। हमने एक कोई पॉजिटिव नंबर लिया है, रियल नंबर, तो इसी के लिए हमारे पास, इस एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक डेल्टा पॉजिटिव आता है जो एप्सिलॉन और लिमिट पॉइंट दोनों पे डिपेंड करना चाहिए, सच दैट इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन लेना है और जो पॉइंट्स का जो मॉड होगा वो लेस देन डेल्टा लेना होना चाहिए। ठीक है, सो ये डेफिनेशन है आपकी लिमिट्स की। सो और सिंपली वी कैन ऑल्सो राइट एज लिमिट z tends to z naught f of z is equal to L, or you can also write it as simply f of z tends to L as z tends to z naught. ऑलराइट, कोई भी पॉइंट अगर आपके लिमिट पॉइंट पे अप्रोच करता है तो उसकी फंक्शन की वैल्यू आपका L पे अप्रोच कर रही है, वही आपकी लिमिट है फंक्शन की। ठीक है, इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे। सो अब यहाँ पर एक रिमार्क लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक रिमार्क लिख लेते हैं। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट लिमिट एक्स वाई, अब वहाँ पर हमने z लिखा था बिकॉज z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसकी पोलर फॉर्म हम x कॉमा वाई लिख रहे हैं। दिस टेंड्स टू a कॉमा b, अगर वहाँ पर z नॉट लिमिट पॉइंट है तो यहाँ पर हमने x के लिए a ले लिया, y के लिए b ले लिया, और f ऑफ z की जगह हम लिख रहे हैं x कॉमा वाई। दिस इज इक्वल टू l। अगर हमें इस फंक्शन की लिमिट l प्रूव करनी है तो इट इज़ एनफ टू प्रूव, इसकी लिमिट L प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है, इट इज़ एनफ टू प्रूव दैट, क्या लेना है एप्सिलॉन, दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट, इस एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव, सच दैट, अब यहाँ पर देखो x जो है, हम अगर हम पॉइंट्स की बात करेंगे जैसे z माइनस जेड नॉट था, यहाँ पर x माइनस ए, दिस शुड बी लेस देन डेल्टा। पहले मैंने बताया था पॉइंट्स का अगर हम देखेंगे तो वो लेस देन डेल्टा मॉड लेना है उसका, कॉमा y माइनस बी मॉड शुड बी लेस देन डेल्टा। दिस इम्प्लाइज, अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा जो फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई माइनस एल, इनका जो मॉड होगा डिफरेंस का दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे इसके बेस पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन योर, आपका फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है from C to R, C is your set of complex number to R by f of xy is equal to xy x square minus y square over x square plus y square, where xy is not equal to 0 0. Prove that limit xy tends to 0 0 f of xy is equal to 0। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, हमें प्रूव करना है कि इसकी लिमिट 0 है। ठीक है,
नेक्स्ट पेज पे हम इसकी लिमिट प्रूव करते हैं. ओके, प्रूफ. अब सबसे पहले हम एप्सिलॉन गिवन लेंगे. लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन. ऑलराइट, नाउ हम सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स वाई को ज़ीरो लिमिट लेकर आनी है, तो हम मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस ज़ीरो को लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करेंगे. नाउ मॉड ऑफ एक्स कॉमा वाई, जो हमें लिमिट प्रूफ करनी है, हमें लिमिट ज़ीरो प्रूफ करनी है उसकी. सो उनका डिफरेंस ये लेस देन हमने एप्सिलॉन लेके आना है. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर अपना एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन लिख रहे हैं. एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड माइनस ज़ीरो मैंने नहीं लिखा. दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. नाउ दिस मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन दिस. अब हम ये चीज़ें रहने दो. ये चीज़ देखो आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली चीज़, क्या ये पूरा का पूरा मॉड लेस देन इक्वल टू 1 है? यस. कैसे? देखो, जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस है और डिनोमिनेटर आपका ज़्यादा है, तो हमारा जो मॉड होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मॉड आपका लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर आपका ज़्यादा है न्यूमरेटर से. सो दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 1. तो हम इसकी जगह लेस देन इक्वल टू 1 लिख रहे हैं और साथ में ये तो है ही है, मॉड एक्स मॉड वाई. ऑलराइट, नेक्स्ट. नाउ अब हमें अपना डेल्टा चूज़ करना है एप्सिलॉन के लिए. वी विल चूज़ दिस. वी नो दैट मॉड ऑफ एक्स, हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारे पॉइंट्स आएंगे उनका मॉड लेस देन जो भी आपका लिमिट पॉइंट होगा. जैसे यहाँ पर हमें लिमिट पॉइंट ज़ीरो प्रूव करना है और यहाँ इसके लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है पीछे बैक में देखो, दिस एक्स वाई टेंस टू ज़ीरो ज़ीरो. दैट मीन्स आपको जो एक्स माइनस ए, जो मैंने यहाँ बताया था आपको, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा. सो दिस एक्स माइनस ज़ीरो इज़ लेस देन डेल्टा and y minus 0 is also less than delta. That is your mod x is less than delta and mod y is also less than delta. ठीक है. सो इसके लिए नेक्स्ट, so I'm choosing my delta. If we choose delta equal to एप्सिलॉन, क्योंकि डेल्टा भी लेस देन ज़ीरो है, एप्सिलॉन सॉरी डेल्टा भी हमारे पास पॉजिटिव है और एप्सिलॉन भी हमारे पास पॉजिटिव है, तो मैंने कुछ भी हम इसको आपस में चूज़ कर सकते हैं. जस्ट इसको हमें एप्सिलॉन प्रूव करना है. सो आई एम टेकिंग डेल्टा टू बी एज रूट ऑफ एप्सिलॉन, बिकॉज मेरा जो मॉड एक्स है वो भी लेस देन डेल्टा है, मॉड वाई भी लेस देन डेल्टा है. दैट मीन्स ये चीज़ क्या होगी हमारे पास, लेस देन डेल्टा स्क्वायर. ओके, सो दिस इज less than delta, this is also less than delta, which is equal to delta square. because मुझे से एप्सिलॉन बनाना है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा को रूट एप्सिलॉन चूज़ कर लेंगे. सो दिस इज रूट एप्सिलॉन इंटू रूट एप्सिलॉन विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन. तो फाइनली हमारे पास इफ़ वी चूज़ डेल्टा इज इक्वल टू रूट ऑफ एप्सिलॉन, देन मॉड एक्स इज़ लेस देन डेल्टा. हमने पहले ये लाइन इसलिए लिखनी है बिकॉज हमारा डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंड करना चाहिए, इसलिए हम पहले ये लाइन लिखेंगे, फिर हम बोलेंगे देन मॉड एक्स लेस देन डेल्टा एंड मॉड वाई ऑल्सो लेस देन डेल्टा. ठीक है. सो फाइनली हमारे पास आ गया मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस ज़ीरो मॉड इज़, ये हमारा साइन चल रहा है लेस देन, दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन. यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी. जैसे ही हमारा मॉड जो है दोनों का लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है, हमारी ये लिमिट क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी. बट एप्सिलॉन तो आर्बिट्ररी है, कुछ भी हो सकता है, तो ये सभी चीज़ों के लिए वैलिड है. सो बट एप्सिलॉन वॉज आर्बिट्ररी.
आर्बिट्ररी मीन्स हम एप्सिलॉन को कुछ भी चूज़ कर सकते, किसी भी एप्सिलॉन के लिए हमारा ये मॉड जो है वैलिड हो रहा है। लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 f of x y is equal to 0. This implies limit x y tends to 0 0 x y square over x square plus y square is equal to 0. कुछ नहीं करना, सिंपली हमें ऐसे ही आप इसको समझो, हमें जो भी लिमिट प्रूव करनी है हमें उसका मॉड का डिफरेंस लेना है, जस्ट उसको सॉल्व करना है और हमें ये वैल्यू कैसे भी एप्सिलॉन लेकर आनी है, उस हिसाब से आप अपना डेल्टा चूज़ करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास ये मॉड लेस देन एप्सिलॉन प्रूव हो जाता है तो हम कह देंगे हमारी ये जो लिमिट है इस फंक्शन की लिमिट क्या है, 0 है। दैट्स इट, ऐसे ही हमको प्रूव करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। ऑलराइट, prove that limit x y 0 0 x y square over x square plus y square is equal to 0, ये प्रूव करनी है हमें। अब इस चीज़ को हमें 0 प्रूव करना है, इसका प्रूव करते हैं। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए बी गिवन मॉड f of x y लिमिट 0 प्रूव करने है, सो दिस इज -0, दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें ये चीज़ चेक करनी है। माय फंक्शन इज दिस एक्स वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड -0 मैंने नहीं लिखा, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। मुझे ये चीज़ चेक करनी है। अब यहाँ देखो, वाई स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ ठीक है क्योंकि स्क्वायर्स हैं तो सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं और वाई स्क्वायर इसके लेस देन इक्वल टू हो सकता है। दिस इम्प्लाइज, अगर मैं इस टर्म को नीचे ले जाऊँ तो दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं इस पूरे की जगह लिख रही हूँ लेस देन इक्वल टू 1, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, क्लियर। नाउ वी चूज माई डेल्टा। इफ़ वी चूज, अब यहाँ पर हम डेल्टा क्या चूज़ करेंगे, इफ़ वी चूज डेल्टा बिकॉज मॉड एक्स अब हमारा क्या है, दिस लेस देन डेल्टा, और मुझे चाहिए यहाँ पर एप्सिलॉन, तो मैं डेल्टा को एप्सिलॉन ही चूज़ कर लूँगी। पीछे मुझे रूट एप्सिलॉन इसलिए चूज़ करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर मेरे पास डेल्टा इंटू डेल्टा डेल्टा स्क्वायर आ रहा था। यहाँ पर सिंपली एप्सिलॉन चाहिए तो मैं डेल्टा को एप्सिलॉन ले लूँगी। देन मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन डेल्टा, मॉड ऑफ वाई इज लेस देन डेल्टा। ये मॉड्स मैंने यहाँ से लिए हैं, मॉड एक्स -0 लेस देन डेल्टा, यहाँ से देखो मॉड वाई -0 इज लेस देन डेल्टा, यहाँ से मैं ये चीज़ लिख रही हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई -0, ये मेरा लेस देन इक्वल टू डेल्टा एक्स है। नाउ व्हाट इज डेल्टा एक्स, दिस इज लेस देन डेल्टा and I have chosen delta to be equal to epsilon. So this function mod of f of x y is less than epsilon, right? But epsilon was arbitrary. Epsilon was arbitrary, so limit
एक्स वाई 0 0 f of एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 0। ठीक हो गई बात। ऑल राइट, अब मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उसको ट्राई कीजिए और मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। Okay, so this is exercise for you guys. Prove that limit xy 0 0 x cube y cube over x square plus y square is equal to 0. Next, let f of xy is equal to xy over x square plus y square, where xy is not equal to 0 0. Show that limit xy tends to 0 0 f of xy this limit does not exist. ये लिमिट आपकी आएगी ही नहीं, ये आपको शो करना है। ऑलराइट, इसे आप ट्राई मत कीजिए, ये आप देख लीजिए कैसे करना है। ये आप ट्राई करो फर्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चंस के बेस पर और एक्सरसाइजेस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।